Good afternoon, dear students. Today we'll be studying the chapter 2nd of a science subject, that is microorganisms, friend and foe. So before starting this chapter, I wanted you to ask about what are microorganisms. If any one of you know that what are microorganisms and what are we going to study about today. Okay, students? Don't worry, I'll be teaching you what are microorganisms and how they are useful and harmful to us. So, students, first let's see what microorganisms are. But beforehand, let's see some introduction of the chapter. We know that the microorganisms are living things, but what are they? Are they harmful or useful? What do they produce? We are going to know about the wonder world of microorganisms. Students, before starting this chapter, you all might be having some question in your mind that what are microorganisms, how do they live, are they harmful or useful, what do they produce, etc. etc. So we'll get the answers of all your questions from this chapter. So let's start the chapter. Microorganisms. What are microorganisms? Microorganisms are those organisms which are too small to be seen without a microscope. Those organisms are known as microorganisms. मतलब microorganisms वो organisms हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हमें नहीं दिखते. ठीक है, मतलब these organisms are too small that they cannot be seen from our eyes. सो दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आपको वो दिखेंगे. ओके, दो वी कैनॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू देयर एक्शंस लाइक स्पॉइलिंग आवर फूड एंड कॉजिंग डिजीजेस. आपने देखा होगा कि हमें पता ही नहीं चलता कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ हैं हमारे आसपास, लेकिन हमें उनकी प्रेजेंस कैसे पता चल जाती है? बाय व्हेन दे स्पॉइल आवर फूड एंड बिकॉज ऑफ देम सम डिजीजेस आर कॉज्ड. नाउ यू ऑल मस्ट बी सरप्राइज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम से डिजीजेस भी होती हैं. सो येस डियर स्टूडेंट्स, दे डू spread diseases, so we'll be studying about this. So now let's study about microorganisms. So basically, how many types of microorganisms are there? There are there are four main types of microorganisms. They are bacteria, fungi, algae and protozoa. So students, हमारे पास चार तरीके के microorganisms होते हैं जो कि बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे एंड प्रोटोजोआ की कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. अब जो वायरसेस हैं आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज they reproduce only in the body of the host. Organisms like bacteria and all. So students, we'll be studying about the first microorganism, that is bacteria. So there must be questions in your mind that what is bacteria. So bacteria, singularly called as bacterium, constitute a large domain of prokaryotic microorganisms, typically a few micrometers in length. Bacteria have a number of shapes. So जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, और यू कैन ऑल्सो से फ्यू माइक्रोमीटर्स, और जिनका शेप होते हैं रेंजिंग फ्रॉम स्पीयर्स टू रॉड्स एंड स्पाइरल्स. आपने देखे होंगे स्पीयर शेप में होते हैं, रॉड शेप में होते हैं या फिर स्पाइरल शेप में होते हैं.
Bacteria were among the first life forms to appear on the earth and are present in most of its habitat. जो बैक्टीरिया होते हैं दे वर द फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो अर्थ पर प्रेजेंट हुए थे एंड दे आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स लाइक सॉइल, वाटर, रेडियोएक्टिव वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड द डीप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑल्सो. Bacteria also live in symbiotic and parasitic relationships with plants and animals. They are also known to have flourished in manned spacecraft. जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक और पैरासिटिक रिलेशनशिप में रहते हैं विद प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे आर ऑल्सो नोन टू हैव फ्लरिश्ड इन मैन्ड स्पेसक्राफ्ट ऑल्सो. So this was all about bacteria. I hope this is clear to you. Now let's see how bacteria looks like. These are the rod shaped bacteria. आपने देखा होगा कि ये rod shaped बैक्टीरिया हैं और मैंने आपको स्फीयर और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ाया है और बैक्टीरिया एग्जैक्टली इस तरीके के दिखते हैं. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज वायरसेस. मतलब वायरस क्या होते हैं. So, viruses are the smallest microorganisms which can develop only inside the cells of the host organisms, which may be animal, plant or bacterium. जो वायरस होते हैं they are the smallest microorganisms, सबसे छोटे microorganisms होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल में ही डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल हो, प्लांट हो या फिर बैक्टीरियम हो. एंड वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. मतलब जो वायरसेस होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लिविंग थिंग्स की नहीं होती हैं. दैट इज़ वायरस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. मतलब वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई हो सकते हैं. वायरसेस आर एजेंट्स ऑफ डिजीजेस. जो वायरसेस होते हैं वो डिजीजेस के एजेंट्स होते हैं. एंड कौन कौन सी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं फ्रॉम वायरसेस. द ह्यूमन डिजीजेस सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा दैट इज फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आर ऑल डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस. सो लेट्स सी हाउ वायरसेस लुक्स लाइक. दिस इज द इमेज ऑफ viruses or how they exactly look like. Now moving ahead with the third type of microorganism that is protozoa. अब protozoa क्या होते हैं. Protozoa are a group of single celled microorganisms which are classified as animals. ये animals में classified होते हैं. They are just like algae. जैसे algae प्लांट में क्लासिफाइड हैं, ये एनिमल्स में क्लासिफाइड हैं. दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर, सी वाटर, डैम सॉइल एक्सेट्रा. ये आपको पॉन्ड्स में मिलेंगे, लेक्स में मिलेंगे, रिवर्स में मिलेंगे, डैम सॉइल में मिलेंगे. एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पेरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम. ठीक है, आपने देखा होगा. रेफर टू योर बुक ऑन पेज नंबर 24. You will see the pictures of amoeba and paramecium and you can get an idea of how exactly they look like. And now, as you all know, what all other diseases spread by protozoa are dysentery and malaria. So basically dysentery and malaria are the diseases which are spread by protozoa. So students, let's see how protozoa looks like. This is the form how protozoa looks like. Okay, I hope this is clear. Let's move further to the fourth type of microorganisms, and that are algae. Algae are the group of simple plant-like organisms. They contain chlorophyll and produce food by photosynthesis just like plants. अब आपने पढ़ा कि जो algae होते हैं वो plant-like organisms होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होती है और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड भी प्रिपेयर कर लेते हैं. लेकिन एल्गे हाउएवर डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. जो एल्गे होते हैं
वो प्लांट से सिर्फ इसलिए डिफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे प्लांट्स के पास प्रॉपरली रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, लेकिन एल्गे के साथ ऐसा नहीं होता है। सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गे आर स्पायरोगेरा, Chlamydomonas, blue-green algae. So students, these are the examples of algae. And let me tell you one more thing, that the blue-green algae are example of algae and they have the ability to fix nitrogen gas of atmosphere. मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं आपके, ब्लू ग्रीन एल्गे, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको फिक्स कर सके। Okay, so only some of the algae are unicellular, otherwise they are multicellular. सिर्फ कुछ ही algae आपके ऐसे होंगे जो unicellular होंगे, otherwise सारे के सारे multicellular होंगे। Okay students, so now let's see the images of algae, how algae exactly look like. This is how algae exactly looks like. Okay, I hope this is clear to you. Now moving ahead with the next and the last type of microorganism, that is fungi. So fungi are a large group of organisms which do not have chlorophyll and do not photosynthesize. मतलब ये उस तरीके के organisms हैं जिनके पास chlorophyll भी नहीं है और they do not photosynthesize also. So some of the examples of fungi are yeast, मोल्ड्स एंड मशरूम। आपने देखा होगा यीस्ट वगैरह मोल्ड्स ब्रेड पे हो जाती है जब ब्रेड ख़राब हो जाते हैं तब। ओके, सो मोस्ट ऑफ द फंगाई आर सैप्रोफाइट्स विच फीड ऑन डेड थिंग लाइक रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा जो फंगाई होते हैं वो सेप्रोफाइट्स पे रहते हैं। मतलब सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोज डेड एंड डिकेइंग मैटर, और वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद ना बना के दूसरे प्लांट्स पे या फिर डेड या डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। दोज आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स एंड फंगाई इज़ वन काइंड ऑफ सैप्रोफाइट ओनली। सो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय फंगाई आर रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड। आपने देखा होगा कि फंगाई से जो डिजीजेस होती हैं दोज आर रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड। आपने देखा होगा रिंगवॉर्म जो आप खुजलाते होगे कभी तो दाद वगैरह सुना होगा आपने। एथलीट्स फूड जो आपके पैरों में जब खुजली होती होगी तो जो रैशेस से हो जाते हैं, दिस इज़ नोन एज एथलीट्स फूड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स जस्ट सी द इमेजेस ऑफ फंगाई। दिस इज हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगाई एग्जैक्टली लुक्स लाइक। So students, I hope this is clear to you all. Now let's just move further. After studying about what are microorganisms, how many types of microorganisms are there, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ेस स्प्रेड होती हैं, अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? So microorganisms may be single-celled like bacteria, some viruses and some protozoa, or multicolor such as virus and fungi. They can survive under all types of environment ranging from ice-cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. मतलब जो ये microorganisms होते हैं they can survive in every condition ranging from ice-cold to desert or marshy land. चाहे कितनी भी गर्म क्लाइमेट हो, चाहे कितना भी ठंडा क्लाइमेट हो, दे कैन सर्वाइव एवरीवेयर। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अकेले भी रह सकते हैं या फिर कॉलोनीज़ में भी रह सकते हैं। तो अब जो अकेले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हैं अमीबा, लेकिन जो फंगाई और बैक्टीरिया है वो कॉलोनीज़ में रहते हैं। मतलब कॉलोनीज़ का मतलब हो गया कि दे लिव इन ग्रुप्स। ओके, आपने देखा भी होगा कि मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी फंगाई की और बैक्टीरिया की, उसमें वो ग्रुप्स में थे, अकेले नहीं थे। लेकिन जो अमीबा होता है वो अकेले रहता है।
So hope student this is clear to you. Now moving to the next slide, that how do microorganisms helps us. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं. सो इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. अब आपने देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं. और क्यों यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज दी सॉइल फर्टिलिटी, ताकि हमारी जो सॉइल की है वो फर्टिलिटी अच्छी हो और जो क्रॉप हम ग्रो करें वो अच्छा हो. ठीक है. और ये हम कैसे कर पाएंगे? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. So this is how microorganisms helps us. And the second one is milk is turned into curd by bacteria. आपने देखा होगा जब आप दूध जमाते हैं उसमें जामन डाल के दही, तब आपने देखा होगा नेक्स्ट डे आपको वो कर्ड बन के मिलता है, दही बन जाता है उसका. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी कर्ड. और कौन सा बैक्टीरिया होता है वो? लैक्टोबैसिलस. So of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. Bacteria are also involved in making cheese, pickles and many other food items. अब आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया ना ही कर्ड में बल्कि काफ़ी खानों की चीज़ में यूज़ होते हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग, ताकि वो ख़राब भी ना हो. इसलिए हम काफ़ी जगह पे बैक्टीरिया यूज़ करते हैं. अब जो हम कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस. स्टूडेंट्स प्लीज नोट दिस because this is very important, that which bacteria is present in curd, that is lactobacillus. Okay, now moving ahead to the next slide is the commercial use of microorganisms. Students, अब आपने देखा था जनरल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. नाउ यू विल स्टडी अबाउट द कमर्शियल यूज, मतलब जो लार्ज स्केल पे उसका यूज़ कहाँ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. अब आपने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज़ होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड. जो एसिटिक एसिड, वाइन, अल्कोहल जो बनती हैं ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ही बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल विनेगर इज़ यूज्ड. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices etc. आपने देखा होगा कि विनेगर भी यूज़ होता है. सिरका जो होता है आपने खाया होगा चाउमीन में, अचार में. ये सारी चीज़ें भी सब माइक्रोऑर्गेनिजम्स के यूज़ से ही बनती हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. मतलब जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है इट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन. यू कैन ऑल्सो रेफर टू योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 227. रेफर टू पेज नंबर 27. इन दैट कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बोल्ड लेटर्स में भी लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट. और यीस्ट क्या थी आपकी? फंगाई. इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857. Yes students, I hope this is clear to you all. So this much for today. We'll continue with this chapter tomorrow. I hope you'll finish off your notes today and do study these topics, and from tomorrow we'll be starting the next part of the chapter. So have a nice day.